ہمارے جیسا لوگ قربان جاؤ. انصار رضا چیلنج دیتا ہے محبوب الہی کی اس دلی کی سرزمین میں لا کے دکھاؤ میرے مصطفیٰ جیسا, لا کے دکھاؤ میرے مصطفیٰ جیسا. میرے آقا نے فرمایا ہے اگر میرے عاشق کے قدموں میں کانٹا لگتا ہے اس کانٹے کی تکلیف اس کے قدموں تک بعد میں مجھ محمد کے دل تک پہلے پہنچ جاتی ہے. اس نبی کے میلاد میں بیٹھے ہو, کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے ایسے نبی کا میلاد خاموشی سے سننا چاہیے؟ ایسے نبی کے اوپر اپنی جانوں کو لٹا دینا چاہیے؟ ارے کون نبی, نبی کی تعریف کی جائے. ہم نے کہا ہے نبی پہنچا مولا علی مشکل کشا حاجت روا داماد پیغمبر فاتح خیبر, فاتح خیبر کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے اے میرے علی میرے آقا کی کچھ تعریف کرو, اے میرے علی میرے آقا کی کچھ تعریف کرو. میرا علی فرماتے ہیں کہاں تک کروں میرے آقا کی تعریف, تو سر کے بال سے لے کر ناخون کے پاؤں تک ہے, کیا کہنا چاہتے ہو علی؟ علی فرماتے ہیں میرے نبی کا چلا لاجواب ہے, میرے نبی کا اٹھنا لاجواب ہے, میرے نبی کا بیٹھنا لاجواب ہے, میرے نبی کا سینہ بھی لاجواب ہے, میرے نبی کا مدینہ بھی لاجواب ہے, میرے نبی کا دندان بھی لاجواب ہے, میرے نبی کا خاندان بھی لاجواب ہے, اور میرے نبی کا تلوا بھی لاجواب, میرے نبی کا جلوہ بھی لاجواب, میرے نبی کا آنا بھی لاجواب, میرے نبی کا جانا بھی لاجواب. تبھی شاعر فرماتا ہے کہ ان کے در کا دانا دانا اچھا لگتا ہے, کہ ان کے در کا دانا دانا اچھا لگتا ہے اور انہی سے مانگ کے کھانا اچھا لگتا ہے. ان کے در کا دانا دانا اچھا لگتا ہے اور انہی سے مانگ کے کھانا اچھا لگتا ہے. ارے آنا ہے میلاد نبی کا, جانا ہے معراج, آنا ہے میلاد نبی کا, جانا ہے معراج. ارے میرے نبی کا آنا جانا اچھا لگتا ہے. میرے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا, ہم سنیوں کا بیڑا کیوں؟ کس نبی کی بات چل رہی ہے, کس نبی کا ذکر چل رہا ہے, کس نبی کے میلاد میں آئے ہو دوستو؟ ہاں وہی مصطفیٰ کہ سرکار کا طریقہ گفتار دیکھ کر, کہ سرکار کا طریقہ گفتار دیکھ کر دنیا قریب آنے لگی, پیار دیکھ کر سرکار کا طریقہ گفتار دیکھ کر دنیا قریب آنے لگی, پیار دیکھ کر. اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے لوگ, اللہ کی کتاب پر ایمان لائے لوگ اللہ کے رسول کا کردار دیکھ کر, اللہ کے رسول کا کردار دیکھ کر. کون نبی میرے آقا صلاۃ والسلام کی یہ شان ہے. ایک بوڑھی ہے, ایک بوڑھی, کیا ہوتا ہے معاملہ, وہ اپنے قافلے میں رہتی ہے لیکن کیا ہے, ایک کافرہ ہے اللہ کے رسول سے لیکن عشق کرتی ہے, محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے. اب دیکھا اس نے اس کے میرے آقا کے عشق میں اتنی دیوانی ہو چکی ہے, وہ بھی چل رہی ہے تو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہہ رہی ہے, اٹھ رہی ہے تو یا نبی کی صدائیں لگا رہی ہے. دوستو جب اس کے قافلے والوں نے یہ معاملہ دیکھا ہے تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا ہے, اس پر فٹکار لگانا شروع کر دیے. کہا کیا ہو, رہتی ہمارے ساتھ ہو, کھاتی ہمارا ہو, پیتی ہمارا ہو, لیکن نام اس محمد کا لیتی ہو. کہا کیا کروں, اس کے چہرے پر نور ہی اتنا تھا جب سے اس کو دیکھا ہے میں دنیا کو ہی بھول گئی. کہا جب سے اس پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے جب سے میں دنیا کو بھول گئی ہوں. اتنا سننا تھا. ان قافلے والوں نے کہا اگر تیرا معاملہ ایسا ہی رہا, اگر تو اس نبی کا نام لیتی رہی, تو نے محمد کی یہ صدائیں نہیں چھوڑی تو تجھے قافلے سے نکال دیا جائے گا. اتنا سننا تھا. اس نے کہا تم قافلے کی بات کرتے ہو, اگر اس دنیا سے بھی نکال دو تو اس دل سے اس مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے, اس محمد کی محبت نہیں نکال سکتے. اتنا سننا تھا. اب اس بوڑھی کو اس قافلے سے الگ کر دیا گیا ہے. اس بوڑھی کا ایک نوجوان ہے دوستو, اتنا سننا تھا. اب وہ بوڑھی اس قافلے سے الگ ہے, اپنا گزر بسر کر رہی ہے, کھلا رہی ہے, پلا رہی ہے اپنے بچے کو. اب اپنے بچے کو کھلا پلا کر کے اپنے بچے کو روا دوا کر دیا ہے کام کے لیے. لیکن معاملہ یہ ہے وہ جا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کا لڑکا انتقال کر جاتا ہے. اتنا سننا تھا جب لوگوں نے دیکھا, جنہوں نے اپنے قافلے سے اس بوڑھی کو نکال دیا تھا, جنہوں نے
इस बूढ़ी को काफले से निकाला, कहा क्या हुआ, तूने हमारे बुतों को छोड़ा, तूने अपने जो चाल चलन थे उसको छोड़ करके या नबी कहा करती थी, ये देख तूने बुतों की परिस्थिति को करना छोड़ दिया तो तेरे से तेरे बेटे को छीन लिया गया है। इतना सुनना था, उस औरत को जलाल आ गया और उस औरत ने कहा क्या कहते हो, कहा मुझे उस नबी के नाम पर ताने देते हो जो अपनों का नहीं बल्कि गैरों का भी इतना है, अगर उसे देख ले तो वो या नबी कहता है। इतना सुनना था, वो औरत रोती रोती उस नबी के बारगाह में जाती है जिसे हम तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। आका की बारगाह में जाती है और जाने के बाद कहती है आका मैं आपके पास आई हूँ। कहा क्या हुआ, अब मेरे आका ने पूछा क्या हुआ, कौन आका पूछ रहा है, जो दुनिया का नहीं बल्कि आसमान का भी देखता है, दोनों जहान का देखता है। मेरे आका जानते थे लेकिन पूछा क्या हुआ, कहा आका ये मामला है कि मेरा बेटा था, ऐसे ऐसे मैं काफले में रहती थी लेकिन मैंने आपसे इश्क करना शुरू कर लिया है, या नबी के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अगर उस मोहम्मद को नहीं छोड़ेगी तो काफला छोड़ दे। मैंने काफले को छोड़ा, मुझे मालूम है मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, लेकिन मेरा ईमान ये है, मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह ने उसको मौत दी थी इसलिए आई है। मैंने कबीला छोड़ा है, मौत इसलिए नहीं आई है बल्कि इसलिए आई है क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए मौत को मुकर्रर कर दिया था। आका ने कहा ये तो वो मामला है, अब ये बता चाहती क्या है, इस बारगाह में आई है, चाहती क्या है। इतना सुनना था, औरत रोने लगी और रो के कहने लगी आका अगर मेरा बेटा जाता ये बर्दाश्त कर लेती, लेकिन कोई आपके बारे में ताने दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहा क्या चाहती हो, कहा का उनको जवाब देना चाहती हूँ, आका उनको जवाब देना चाहती हूँ। कहा कैसा जवाब, कहा मौत अगर दी है तो उस रब ने दी है, लेकिन वो रब तुम्हें मानता है, उसके तुम महबूब हो और तुम्हारे लिए कायनात को बनाया गया है, जो पूरी कायनात को तुम्हारे लिए बना सकता है वो मेरे बेटे को तुम्हारे लिए जिला भी सकता है, जिला भी सकता है। इतना सुनना था, मेरे आका ने कहा क्या चाहती हो, कहा मेरे बेटे को बस कुछ पल के लिए जिंदगी दे दो, जो मैं बता दूं कि मैंने जिससे मोहब्बत की है वह कोई मामूली शख्सियत नहीं बल्कि अगर तुम्हें भी बनाया गया है तो उसी नबी के सदके में बनाया गया। इतना सुनना था दोस्तों, मेरे आका ने कहा रोती क्यों हो, रो मत, अपने आंसुओं को पोंछो क्योंकि ये मैं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है और मेरे को रब ने रोते हुए को हंसाने के लिए भेजा है। अब आगे आगे बूढ़ी मुस्कुराती मुस्कुराती चल रही है, पीछे पीछे मेरे आका चल रहे हैं। इतना सुनना था, अब अपने घर पर ले जाती है, उस बूढ़ी ने दिखाया कि ये मेरा बेटा है जो चरपाई पे पड़ा है। मेरे आका ने कहा यही है, कहा ये मेरा बेटा है। इतना सुनना था, वो मुर्दा बेटा जो उस औरत का पड़ा हुआ है, जो कबीले वाले ताना मार रहे हैं, मेरे आका ने उसके कदमों के अंगूठों को पकड़ा और नाम लिया और कहा उठ के खड़ा हो जा। इतना सुनना था तो गैर मजहब, लेकिन एक नारा लगाने लगा, वही नारा जो आज पूरी हमारी कौम लगा रही है, नबी के दीवाने लगा रहे हैं। पैरों को पकड़ा, हिलाया तो वो बस वो काफिर था काफिर, लेकिन जुमले सुनना। हुजूर ने उठाया, कहा उठ करके खड़ा हो जा। वो आदमी, वो लड़का अपने ऊपर से चादर को हटाता है, बस एक ही जुमला कहता है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने नबी की मोहब्बत में हजरत ने इतना जब जोश पैदा किया तो ये इनका इशारा सिर्फ यही था कि वाकई में आप लब्बैक वाले हैं या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अगर दोनों हाथ अपने नबी की मोहब्बत में उठाए, दोनों हाथ, और यही आवाज आनी चाहिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं यही कह रहा था, जब यहाँ से मैं आया हूँ, आने के बाद मेरे कानों में एक जुमला पड़ा था, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ ये जोश भरने का मामला इसलिए नहीं है। अरे आप लोग अपने किरदारों को बदलो, अपने आप
आप को बदलो। दोस्तों आज इस महफिल से उठ करके जाना, ये समझ जाओ आज तुम्हारे इस्लाम को घेरा जा रहा है, चारों तरफ से मुसलमानों के दुश्मनों को खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों कुर्बान जाइए, लेकिन हम वो दीवाने हैं, वो मस्ताने हैं, अगर हम कूफे में जाएं तो कूफे को करबला बना दिया करते हैं। कुर्बान जाइए, हम उस हुसैन के गुलाम हैं। दीवानों मैं यही कहना चाहता हूँ, बता दो, पैगाम दे दो। लोग इसको मिटाने की उसको मिटाने की बात करते हैं, कभी कुरान पर उंगली, कभी मेरे आका पर उंगलियां उठाते। बता दो कि अल्लाह का कुरान मिटाता न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटाता न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटाता न मिटेगा। और इतनी करो कलाम मुकद्दस की तिलावत के दुश्मन भी के उठे, इतनी करो कलाम मुकद्दस की तिलावत के दुश्मन भी के उठे। दुनिया से मुसलमान मिटाता न मिटेगा, दुनिया से मुसलमान मिटाता न मिटेगा। बस यही बात बता करके आप लोगों के सामने से रुखसत होता हूँ। दोस्तों क्या मामला है, दीवानों कुर्बान जाइए, आशिक हो तो सच्चे बनो, क्योंकि किसी दुनियादार के नहीं, अपने नबी के आशिक हो, एक मुस्तफा के आशिक हो। उस गुलाम की पहचान ये होती है, जिंदा तो जिंदा, अगर मुर्दे का जनाजा वहां से किसी के गली से गुजर आया करता है तो वो भी कहते देखो देखो गुलामान मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, देखो देखो हम उसके दीवाने हैं। दोस्तों क्या मामला है, कुरान पर उंगली, कभी ईमान पर उंगली, अपने ईमानों को मजबूत कर लो और डंके की चोट पर आशिकों की तरह बता दो। क्या मामला था, एक यहूदी के यहाँ पर एक मुसलमान काम कर रहा है, लेकिन काम करने का अंदाज ये है, जब काम कर रहा है सुबह उठता है, फजर की नमाज अदा करता है, फजर की नमाज अदा करता है, कलाम मुकद्दस की तिलावत करता है, उसके बाद अपने काम को शुरू करता है। जब उस यहूदी ने देखा कि रोज उठता है, नौकर मेरा है लेकिन वफादारी उस रब की कर रहा है, नौकर मेरा है वफादारी उस रब की कर रहा है। कहा क्या करते हो, रोज पहले नमाज पढ़ते हो, फिर कलाम मुकद्दस की तिलावत किया करते हो, उसके बाद मेरे काम करते हो। कहा छोड़ दो इसको, सिर्फ मेरे काम करो। तो वो दीवाना कहता है, ये दीवाना अपनी सांसों को तो छोड़ सकता है लेकिन कलाम मुकद्दस की तिलावत नहीं छोड़ सकता। कि सितारों की महफिल में खलल पड़ता है, कि सितारों की महफिल में खलल पड़ता है, ये चांद दीवाना है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। कि सितारों की महफिल में खलल पड़ता है, ये चांद दीवाना है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। ए सांसों जरा धीरे धीरे चलो, ए सांसों जरा धीरे धीरे चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उसी अंदाजे का वो आशिक था, इतना सुनना था, कहा मेरे ईमान को मत ललकारना, मैं तुम्हारी नौकरी करता हूँ, उतने पैसे लेता हूँ, लेकिन उस रब ने मुझे जिंदगी दी है, मैं उसका कुरान भी पढ़ूंगा, मैं उसकी नमाज भी पढ़ूंगा, तुझे नौकरी से हटाना है तो हटा दे। इतना सुनना था, उसने उस मुसलमान को चैलेंज कर दिया, मुसलमान को चैलेंज कर दिया। कहा ये सुन, ये तेरा कुरान है, वो मेरी किताब है, ऐसा करते हैं दोनों की किताब को आग में डाला जाएगा, जिसकी किताब बच जाएगी उसी का ईमान सच्चा होगा। अब मुसलमान हो और चैलेंज दे दिया गया हो और दीवाना है मुस्तफा हो तो पीछे कैसे हटता। उसको मालूम था कि उसका ईमान जो है बड़ा ही मजबूत था, उसे खुद पर नहीं बल्कि अपने खुदा पर भरोसा था, इतना सुनना था। अब वो जो यहूदी था उसने अपनी किताब के ऊपर वो केमिकल आता था जो आग में जलने नहीं देता था, हर बरके को पलटता था, ये अपने घर वो अपने घर। अब किताब के ऊपर वो केमिकल लगा दिया है, हर पन्ने को पलट के लगा रहा है, हर पन्ने को पलट के लगा रहा है। लेकिन उस दीवाने पर कुर्बान जाओ, अपने सीने से कुरान को लगाकर पूरी रात रो रहा है। कहा अल्लाह तेरे ईमान को चैलेंज किया था, मैं वापस आता भी तो कैसे आता, चैलेंज को एक्सेप्ट करना मेरा काम था, अब कलाम मुकद्दस की और मेरी इज्जत की हिफाजत करना तेरा काम है, तेरा काम है। इतना सुनना था। अब वो दूसरा दिन मुकर्रर कर दिया गया है जिस दिन आग के अंदर कलाम मुकद्दस को भी डालने की बात की जा रही है और उस किताब को भी आज देखा जाएगा इस्लाम किसका सच्चा है। इतना सुनना है, वो केमिकल लगा रहा है और ये अपने आका से लो लगा रहा है, मोहब्बत से रब से कह रहा है ए मेरे रब इस किताब की हिफाजत मुझे पता है, तूने जिम्मा लिया है, कुछ नहीं हो सकता है। अब इतना सुनना था, मुकर्रर वक्त पर लोगों को बुला लिया गया है, आग को दहका दिया गया है। अब वो सीने से कलाम मुकद्दस को लेकर आ रहा है लेकिन आंखों में आंसू है। लेकिन वो जो यहूदी आ रहा है अपनी किताब को बिल्कुल डंके की चोट पर ला रहा है, क्योंकि उसको तो अपने केमिकल पे भरोसा था ना, उसको मालूम था ये केमिकल किताब को जलाएगा नहीं। लेकिन वो भूल गया था जिसने कायनात को बनाया उसी ने भी उसी केमिकल को पैदा किया, वो भूल गया था।
कि उस केमिकल को बनाने वाला भी वही रब है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। इतना सुनना था, अब उसने देखा कि ये आ गया है, अब इतना सुनना था। वो दीवाना बोला सुन, वो किताब की बात है, अब खाली आग में किताब नहीं जाएगी बल्कि किताब के साथ किताब वाले भी जाएंगे। मैं अपने कुरान के साथ इस आग में कूदता हूँ, तो अपनी किताब के साथ इस आग में कूद। इतना सुनना था, वो घबरा गया क्योंकि केमिकल सिर्फ किताब पर था, उस पर थोड़ी था। वो घबराने लगा, वो डरने लगा, कदमों को पीछे खींचने लगा। इतना सुनना था, उस आशिक ने कहा ये दीवाने की जुबान है, दीवाने की, अब तू चाहे दुनिया छोड़, लेकिन चैलेंज मैंने किया था कि आग में जाएंगे, ये कुरान लेकर के मैं आग में जाऊंगा, तुझे जहाँ जाना है जा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे कुरान को भी कुछ नहीं होगा, मेरे जिस्म को भी कुछ नहीं होगा। इतना कहना था, अल्लाह का नाम लेकर के वो धड़कती हुई आग के अंदर कूद गया। अब वो किताब को लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन ये किताब को लेकर के आग के अंदर कूद गया, आग के अंदर कूद गया। अब लोग देख रहे हैं कि जलती हुई आग में, धधकती हुई आग में ये क्या मामला है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है जलकर खाक हो गया। अब वो यहूदी कहने लगा, देखा मैं कितना सच्चा था, मेरी किताब भी बची, मैं भी बचा, ये तो जल करके खाक हो गया। लोग आग की तरफ देख रहे हैं, उसके भी चाहने वाले थे, आग की तरफ तक तक के देख रहे हैं, क्या हो सकता है कि वो आएगा। लेकिन लोगों ने उम्मीद तोड़ दी। जब सबकी उम्मीद टूट जाती है तो रब का फैसला होता है, और वो फैसला इस अंदाज में हुआ, 2-4 घंटे तक वो आग के अंदर रहने वाला आदमी निकलता है तो इस अंदाज से निकलता है, उसका लिबास जो गंदा था वो लिबास नहीं बल्कि लिबास का सिर्फ गंध जला था। सीने में कलाम मुकद्दस को लिपटाता हुआ बस एक नारे के साथ आग से बाहर निकलता है, लब्बाइक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूलुल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है, मेरे पढ़ने में, मेरे बोलने में जो गलती खामी हुई हो अल्लाह तबारक ताला माफ अता फरमाए, और हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे अजीज साथी राजू भाई ने मुझे दावत नामे पर बुलाया, मैं हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक ताला इनकी इस महफिल को कबूल करे। बिलखुसूस इन्होंने अपने वालिद साहब की विसाल के लिए किया, अल्लाह तबारक ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल फरमाए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।